we have seen two system of charges under GST: forward charge and reverse charge. Uh, system of collection under GST. System of collection of GST. System of collection of GST. There are two systems. One is forward charge. Second one is, or another is reverse charge. Forward charge mechanism or system, you can say. Mechanism or system, you can say. Reverse charge mechanism or system. We can say in short RCM. Reverse charge mechanism or reverse charge system. There are two systems of collecting GST. One is forward charge system, another is reverse charge system. Under forward charge system, GST is collected by seller or supplier and then remitted to the government. But in reverse charge mechanism, GST is not collected by seller or supplier. It is paid by directly to the government by whom? By recipient or buyer of goods or service. There are some goods which comes under reverse charge mechanism. There are some goods which comes under reverse charge mechanism. What are those goods? Cashew nut, berry, apple leaves, candle leaves. Who is the supplier? Agriculture is the supplier. The person who is receiving the goods or purchasing the goods is required to pay to the government directly. Yes. Is required to pay to the government. When you are saying government के बनाइए agriculturist. Agriculturist will not collect. Agriculturist is the seller of cashew nut, seller of berry, apple leaves. Agriculturist will not collect GST. The company or the person who is purchasing from them, they are required to pay to the government GST directly. Agriculturist will not collect. जो कंपनी परचेज कर रही है वो कंपनी जीएसटी पे करेगी. चंदू लीव्स सप्लायर कौन है? एग्रीकल्चरिस्ट. सिल्क यार्न के केस में मैन्युफैक्चरर ऑफ सिल्क यार्न, ये क्या है? जैसे सुबली बोला था सिल्क यार्न. तो मैन्युफैक्चरर need not collect GST. In case of supply of lottery also, government will not collect from lottery dealer. Lottery dealer will pay. Lottery dealer. To government. Government तो नहीं है और government के भी. ये पता बोल दो government. ठीक है बोले. Government भी तो नहीं चला. Government is selling to the distributor and this government is selling lottery to the distributor. Government will not collect. The responsibility is on distributor. The responsibility is on distributor to pay tax to the GST department. What are the government? State government lottery जाना ना. कंपनी लॉटरी पर देखिए जो दुकान है स्टेट गवर्नमेंट को तो ये पता नहीं.
तो ये सब किसके अंडर में? ये सब गुड्स है जो कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर है। जो पर्सन खरीद रहा है इन लोगों से मतलब सप्लायर से, सप्लायर कौन है? रिजर्व चार्ज में। रिवर्स चार्ज में आ रहा है ये सब कुछ। Raw mat- डायरेक्टली पे नहीं हो रहा है, ये लिखा है तेरा पे गवर्नमेंट अलग से। हाँ, जो रेसिपेंट है वही पे करेगा। ये जो चैप्टर है ये पूरा रिवर्स चार्ज है। जो गुड्स तुम देखोगे या सर्विस देखोगे ये सब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ही आ रहा है। रॉ कॉटन के केस में भी जो एग्रीकल्चर सप्लाई कर रहे हैं वो नहीं कलेक्ट करे। यूज्ड व्हीकल के केस में, सीज्ड व्हीकल के केस में, कॉन्फिस्केटेड गुड्स के केस में, ओल्ड यूज्ड गुड्स के केस में, यहाँ पे सप्लायर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेलिंग यूज्ड गुड्स, used motor vehicle. So the purchaser who is purchasing, that means recipient will pay to the government. If the government means GST department. এখানে শোরুমের কেস চলছে না। শোরুমে ইউজড আছে দেখো, ইউজড ভেহিকল। তুমি পুলিশের ভ্যান দেখেছো? পুলিশের ভ্যান কতদিন পর্যন্ত চলে? সিরিজ যাচ্ছে তবু চলছে। তো ওটা যখন ইউজ হয়ে গেল, when the government is selling, ওটা কার? পুলিশের ভ্যানটা কার? গভর্নমেন্ট। When government is selling to any party or any company, the company is purchasing, so company is required to pay to the government GST department. GST. Union territory means there are some areas which are under central government. These are called union territory. These are not states, but these are areas which are under the control of central government. Under the control of central government. These are union territory. UTGST লাগবে। UTGST, SGST হবে না। In that case, UTGST. সেখান থেকে যদি সাপ্লাই হয়। আচ্ছা, ডেস্টিনেশন, ইন কেস অফ ডেস্টিনেশন উইথ ট্যাক্স, সেখান থেকে যদি তুমি সেন্ড করো, সেখান থেকে যদি সেন্ড করো within, if you supply goods within union territory, in that case UTGST will attract. UTGST লাগবে। SGST কখন লেগে যায়? SGST কখন লাগে? If you sell within the state, SGST. If you sell within union territory, then UTGST. If you sell within union territory, in that case CGST and UTGST. If you sell within union territory, but if you sell within state, if you sell goods or provide service within state, then SGST and CGST and SGST. আরে সেটা স্টেট ছিল, এটা ইউনিয়ন টেরিটরি। কিছু এলাকা রয়েছে সেটা স্টেট হিসাবে ঘোষণা হয়নি, সেটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের আন্ডারে রয়েছে, ওটা ইউনিয়ন টেরিটরি। তো জিওগ্রাফি ছিল কি ছিল না? ঠিক করে পড়েছিলে? কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল শুনেছিল, সেটাই তো। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বলতে इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में जो पर्सन इंपोर्ट कर रहा है उसे ही जीएसटी पे करना है। जो एक्सपोर्ट कर रहा है
वो तो बाहर में, पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी वो तो बाहर में, आउटसाइड इंडिया है। तो जो import मतलब जो person goods import ले कर रहा रहा है, है, हाँ। वही पे कर। खुद पे करेगा। हाँ, वो लेकिन- जो सेल कर रहे हैं वो कहाँ नहीं बाहर- करेंगे? वो बाहर है। वो नहीं करेंगे। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स भी कवर हो गया है Sir, किसमें, ये रिवर्स बताओ चार्ज कि मैकेनिज्म, IGST under रिवर्स है, चार्ज sir? मैकेनिज्म। Sir, ये last वाला फिर से बताइए। IGST under है, क्या ना IGST? last एक का। कारण कि वो तो बाहर है, लेकिन sir, बाहर की sir, IGST will be charged, second procedure- IGST will be paid to the Sir, government, sir, IGST will be paid to the government. दूसरे इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एनी गुड्स, कोई भी गुड्स हो सकता है ये वो पहन के ले sir। कवर होगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, क्योंकि जो पार्टी सप्लाई कर रहा है वो तो बाहर है। हाँ, use बोलने से ये तो जो reserve charge के under आ रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज, तो रिवर्स। goods है ना, ये सब जो goods है, सर हम लोग को तो ऐसे भी आईजीएसटी तो लगाना ही पड़ेगा। हाँ IGST तो लगाना पड़ेगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स भी। रिजर्व चार्ज का क्या यूज है? reverse charge का use क्या है? पे करेगा वही तो जो सेल करेगा यहाँ पे तो importer दे रहा है वो डायरेक्टली पे नहीं करेंगे। ये सेलर importer ये तो पे करेगा करेगा। जीएसटी। इंपोर्टर ही तो पे करेगा ना जीएसटी, Import कर रहा है। तो रिवर्स चार्ज होगा कि नहीं। मतलब जिसको गुड्स मिल रहा है वही पे करेगा, हाँ अब इस पर पता नहीं। इसलिए वो रिजर्व है। रिवर्स Reverse रिवर्स सेलर नॉट कलेक्ट जीएसटी। तो सर ये हम लोग को कहीं मेंशन करना होगा क्या? क्या मेंशन करना है? तो हम लोग ऐसे जो भी आईजीएसटी वो देखो लगाएंगे example दे रहे वहाँ हैं पे ना, एक सेकंड, वहाँ पे हम लोगों को मेंशन करना होगा क्या ये रिवर्स चार्ज और फॉरवर्ड चार्ज है, तो कहीं पे हम लोग को मेंशन नहीं करना पड़ता ना। मेंशन करना पड़ता है, कहाँ अगर पे तुम टैली में करोगे तो वहाँ पे एंट्री करते वक्त मेंशन करना पड़ता है, अगर रिवर्स चार्ज है तो वहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है। हाँ हाँ, हम लोग का जब डिस्क्रिप्शन देते हैं ना हाँ वहाँ उधर पे- मेंशन करना, क्या ये तो क्या यूज करते हैं सर, आप सर बताए थे कुछ नो करते हैं। फॉरवर्ड चार्ज है इसीलिए नो करते हैं, अगर वो रिवर्स चार्ज का तो ट्रांजेक्शन हम है लोग को तो पता कैसे चलेगा? अच्छा अगर जीएसटी नहीं प्रोडक्ट देखना रहेगा। पड़ेगा, प्रोडक्ट देखना पड़ेगा, इंपोर्ट है क्या देखना पड़ेगा, हम लोग को देखना होगा वो जो प्रोडक्ट है क्या, हाँ। अगर ये सारा प्रोडक्ट के अंदर रहेगा तब तो वो तो रिवर्स चार्ज नहीं Reverse कवर charge। होगा, तो एंट्री करते वक्त तुम्हें रिवर्स चार्ज सिलेक्ट करना पड़ेगा। और बाकी इसके अलावा जो भी है वो सारा फॉरवर्ड फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स के अंदर इतना ही कवर इतना ही कवर है। हाँ उसका जीएसटी नहीं था तो हम लोग दो भी है रिवर्स थी। एग्जाम्पल कुछ देखो, बी सालगांवकर, बी सालगांवकर a farmer cultivated cashew nut in Goa, तो ये फार्मर है मतलब सप्लायर है। These were sold to what? Industry private limited। कंपनी को सेल किया है, तो फॉर रुपीज 3 लाख रजिस्टर्ड इन गोवा, वो ही गोवा में रजिस्टर्ड है। Applicable GST 5%, तो in this case GST is payable by whom, मतलब ये तो सही जो इंडस्ट्री बाय कर रहा है स्वाद कैसी इंडस्ट्रीज toward मेरा कौन क्वेश्चन था ये? toward कैसी इंडस्ट्री, कितना कितना साढ़े सात, साढ़े 2.5 2.5 विद इन द स्टेट है, विद इन द स्टेट है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो विद इन द स्टेट, अच्छा वो लिखे नहीं साइलेंट से सकते। दिखता हमें है, बता दिया गोवा हाँ, में गोवा में ही है, रजिस्टर्ड इन गोवा। फार्मर गोवा का है और ये भी गोवा कंपनी है। उसके बाद देखो शालीमार इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर्स किसका सेल्स सिल्क यार्ड,
Salimar Industries. Silk Yard in Malda. Company located in Malda, West Bengal. Supplied 100 kg of silk yard at the rate of rupees 300 per kg. So total value 3 lakh. 3 lakh. 3 lakh. हाँ 3 lakh. कितना होता है? 30,000. हाँ এখানে তাহলে কি ভুল আছে? वही तो 30,000 initial और 30,000 का 2.5% ये तो किसको सेल किया गया है? बंगाल लक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड लोकेटेड इन कोलकाता. विद इन द स्टेट है, विद इन स्टेट है, तो इंटरेस्ट स्टेट मिस्टर सालिमार इंडस्ट्रीज हैज इनपुट कितना है? इनपुट जीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, तो एप्लीकेबल जीएसटी रेट 5% है. तो इस केस में जीएसटी कवर होगा. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी पे करना पड़ेगा. जीएसटी पेबल बाय रेसिपेंट, मतलब रेसिपेंट कौन है? मंगल लक्ष्मी. क्योंकि सेल की आर्ट के केस में भी जो रेसिपेंट है उसे पे करना पड़ेगा. यहाँ पे सालिमार तो मैन्युफैक्चरर है ना. सालिमार इंडस्ट्रीज हैज इनपुट. सालिमार इंडस्ट्री का जो आईटीसी है वो कितना है? कंफ्यूज करने के लिए ये डेटा बताया गया है. कंफ्यूज करने के लिए ये डेटा बताया गया है क्योंकि तुम्हें आईटीसी देखना ही नहीं है. किसका? सालिमार इंडस्ट्री. क्योंकि पेमेंट किसको करना है? तो पेमेंट कितना करना पड़ेगा? ठीक है, तो ये तो ज्यादा एक को दिया इसका क्या यूज है? कुछ भी नहीं. कंफ्यूज करने के लिए. ठीक है. देखो अगर ये आईजीएसटी बंगाल लक्ष्मी का हुआ होता फिर भी यू कैन नॉट एडजस्ट. यू हैव टू पे जीएसटी इन कैश. क्योंकि ये परचेज जो जीएसटी अमाउंट है ये परचेज के टाइम your this GST liability at the time of purchase. When you are purchasing goods and you are paying GST under reverse charge mechanism, you cannot claim ITC. ITC का बेनिफिट नहीं मिलेगा परचेज के बाद. परचेज के बाद जो तुम्हारा जीएसटी आ रहा है उसके लिए तुम आईटीसी से एडजस्ट नहीं कर सकते. लेकिन सेल के टाइम जो जीएसटी आ रहा है उसे पेमेंट करने के लिए आईटीसी यूज किया जा सकता है. यहाँ पे जो बंगाल लक्ष्मी गुड्स खरीद रहा है ये क्यों टैक्स देना पड़ रहा है? परचेज करने के लिए या फिर सेल करने के लिए? सेल नहीं, परचेज करने के लिए. अगर बंगाल लक्ष्मी का आईटीसी हुआ होता फिर भी वो एडजस्ट नहीं कर पाते. उसे तो कैश में ही पे करना पड़ेगा क्योंकि ये परचेज का टैक्स है. It is GST on purchase. It is GST on purchase. If the GST is on sale, in that case GST can be adjusted against ITC. अगर सेल के ऊपर GST है वो GST ITC से एडजस्ट हो सकता है. Understood? এখানে আইটিসি যেটা রয়েছে এটা তো সালিমার ইন্ডাস্ট্রির আইটিসি রয়েছে. তো আমি তো সালিমার ইন্ডাস্ট্রির দিকে তাকাবোই না কারণ এটা জিএসটি অ্যাট্রাক্ট হচ্ছে কার বিহাতে कोयल पे जीएसटी बंगाल लक्ष्मी. तो बंगाल लक्ष्मी में कितना देना है?
सपोज आईटीसी है किसके पास, बंगोलक्ष्मी के पास भी आईटीसी है, फिर भी बंगोलक्ष्मी एडजस्ट नहीं कर सकते ये जीएसटी पे करने के लिए, क्योंकि ये जीएसटी ऑन परचेज है, जीएसटी ऑन सेल नहीं, जीएसटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई नहीं, ठीक है। तो आईटीसी का जो एडजस्टमेंट मिलता है वो सेल के ऊपर जो जीएसटी हो रहा है उससे एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। परचेज के लिए अगर तुम्हें कुछ टैक्स देना पड़ रहा है अंडर रिवर्स चार्ज, उस केस में तुम्हारा आईटीसी पड़ा हुआ है, उसे एडजस्ट करोगे तो चल नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये परचेज कर रहे हो, परचेज के टाइम तुम्हें जीएसटी तो पे करना ही। Purchases সময় তো জিএসটি তো ট্যালিতে টেবিলের দিকে থাকে আর যদি সেল করতে সেটা হচ্ছে আপনার ক্রেডিট পাবলিকে তো অ্যাডজাস্টমেন্ট না ট্যালিতে কি আছে সেটা ছাড়ো, আমি এখানে ট্যালি করাচ্ছি না। দিবস বুঝতে পারলে কি পারলেন, কনফিউজ। তুমি এখানে প্রথমে বলো बंगोलक्ष्मी इज रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी, हाउ मच जीएसटी, 750 750। ये जीएसटी सेल के ऊपर है कि परचेज के ऊपर है, परचेज के ऊपर, तो आईटीसी से एडजस्टमेंट नहीं चलेगा। যদি এটা সেলের উপর থাকতো তাহলে অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়ে যেত, हाँ तो যেহেতু পারচেসের উপর অ্যাডজাস্টমেন্ট করা যাবে। जाए ठीक है। तब तुम्हारा जीएसटी ऑन सेल है, मतलब आउटवर्ड सप्लाई, तब तुम्हारा जीएसटी ऑन सेल है 10,000, लेकिन तुम्हारा जो आईटीसी एक्यूमुलेट हुआ है वो है 5,000, तो यू कैन माइनस द आईटीसी एंड पे द रिमेनिंग अमाउंट 5,000 और पे कर दो, 5,000 जो जीएसटी आईटीसी था वो क्लेम कर लो, एडजस्ट कर लो, रिमेनिंग 5,000 पे करना पड़ेगा। यहाँ पे जो 10,000 है सेल ऑन जीएसटी, जीएसटी ऑन सेल है, जीएसटी ऑन सेल है, ठीक है, लेकिन जीएसटी ऑन परचेज के केस में अंडर रिवर्स चार्ज आईटीसी से एडजस्ट नहीं होता। क्योंकि पहले तो तुम परचेज के टाइम जीएसटी पे करो, इसके बाद ही तो तुम्हें आईटीसी मिलेगा उसे जब सेल करोगे, ठीक है। बोलो যখন সেলটা যখন করবো ওখান থেকে যে আইটিসিটা যেমন পাচ্ছে রিভার্স চার্জটা যখন আইটিসিটা এরকম যখন স্টেটের বাইরে আমি যখন সেটা সেল করবো সেটা তো আইটিসি লাগছে, ওটার সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করা যাবে, ওখান থেকে করা যাবে জিএসটি সবার আগে তারপরে এতক্ষণ এটা বুঝতে পেরেছো? যখন ওই কনসেপ্টে যাব ওর জন্য আলাদা সেপারেট চ্যাপ্টার রয়েছে, আমি এখানে যখন একটু ডিসকাস করবো না স্ট্রাকচার এতে ডিসকাস করবো, এখন আমি রিভার্স চার্জ ডিসকাস করেছি। देखो there are some services which are also covered under reverse charge mechanism, there are some services which are also covered under reverse charge mechanism. What are those services? कौन सा सर्विसेज है? What are those services? Goods transport agency services. अगर तुम गुड्स ट्रांसपोर्ट बिजनेस में इन्वॉल्व हो और तुमसे सर्विस ले रहा है फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, इन लोग सब तुमसे सर्विस ले रहा है, कौन सा सर्विस? कोई सर्विस गुड्स मतलब ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, मतलब ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, तुम्हारा बिजनेस है ट्रांसपोर्ट का, तो तुमसे सर्विस ले रहा है सोसाइटी, फैक्ट्री, बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स कंपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन, पढ़ना सीखा, ये लोग तुमसे सर्विस ले रहे हैं, तो जीएसटी किसे पे करना पड़ेगा? डायरेक्टली
डायरेक्टली देना पड़ेगा, डायरेक्टली देना पड़ेगा इन लोगों को। ट्रांसपोर्टर will not collect GST. Transporter will not collect GST from this person. इसको लेना पड़ेगा बाकी किस दे It is in this recipient. Recipient of service, recipient of service, जो गाड़ी का सर्विस दे रहा है जो service दे, recipient of service, recipient, recipient of service. उसके पास सामान को देकर चलो, ABC कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, जीएसटी कौन देता है वही समझदार सबर करो समझदार ABC कंपनी is engaged in providing transportation service. ABC कंपनी का काम ही है कि वो गुड्स ट्रांसपोर्ट करती है लोकेशन से दूसरे लोकेशन। इस पार्टनरशिप फर्म का कुछ गुड्स है जो कि दूसरे लोकेशन में पहुंचाना है, सपोज मुंबई में पहुंचाना है, तो यहाँ पे सर्विस कौन ले रहा है? ABC कंपनी। सर्विस कौन ले रहा है? पार्टनरशिप फर्म, बिक्री सर्विस, so partnership firm is taking service, what service? Goods transportation service. किससे ले रहा है? ABC कंपनी। कहाँ पहुंचाने के लिए गुड्स? मुंबई। यही है सर्विस। तो GST कौन पे करेगा? पार्टनरशिप। ABC कंपनी will not pay. Goods transportation service is covered under reverse charge mechanism. Legal service by advocate. Advocate. Who is taking service? Business entity. Any business organization who is taking service from advocate or firm of advocates. Firm of advocates. Advocate or firm. Firm of advocate means हो सकता है पार्टनरशिप फर्म। तो GST किसे देना है? बिजनेस एंटिटी को। जो बिजनेस कर रहा है वही बिजनेस एंटिटी है। पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, प्रोप्राइटरशिप फर्म हो सकता है, कंपनी हो सकता है, किसी भी एसोसिएशन हो सकता है जो कि बिजनेस कर रहा है। यहाँ पे कोई एग्जांपल है, दुष्यंत देव issued a bill of how much? 20 lakh। किसको इशू किया है? टाटा एंड सन्स। टाटा एंड सन्स ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, बिजनेस एंटिटी का नाम है। ये एडवोकेट है, ये बिजनेस एंटिटी का नाम है। फॉर डिफेंडिंग ए सूट, लीगल सूट, एक लीगल सूट डिफेंड करने के लिए, सूट मतलब केस, सूट मतलब केस, केस डिफेंड करने के लिए, केस लड़ने के लिए वो और यहाँ पे টাকা দিচ্ছে না, বিল 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 সাপোজ তোমার বাড়ির জমি নিয়ে কোনো কেস হয়েছে, তো তুমি অ্যাডভোকেটের পাশে গিয়েছো যে আমার কেসটা ডিফেন্ড করতে হবে, লড়তে হবে কেসটা নিয়ে, তো তুমি কত নেবে বলো আর বিল দাও।
সে সার্ভিস দিয়েছে তারপরে বিল দিয়েছে সেই কেসটাই তো এখানে। So advocate is providing service, কত টাকা সার্ভিস? 20 lakh. 20 lakh. 20 lakh. Advocate has issued bill of rupees 20 lakh. That means Tata and Sons company has taken service of rupees 20 lakh. तो जीएसटी किसे पे करना पड़ेगा? रेसिपेंट ऑफ सर्विस मतलब टाटा एंड सन्स। उसके बाद आ जाओ सर्विसेज सप्लाइड बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सर्विसेज सप्लाइड बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अगर डायरेक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं किसको? कंपनी। कौन सा सर्विस? डायरेक्टरशिप रिलेटेड सर्विस। तुम जो डायरेक्शन दे रहे हो कंपनी को वही एक सर्विस। कंपनी को जो डायरेक्शन दे रहे हो वही एक सर्विस। तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें मिलेगा सेटिंग फीस। मतलब इफ यू आर ए डायरेक्टर तुम्हें मिलेगा सेटिंग फीस। सो यू आर providing service to the company by directing this and that. You are saying that it is not to do this, it is good to do that. You are saying that. Yes. So you are taking setting fees, commission. Suppose if you provide guarantee, suppose you are providing guarantee ki if the company cannot pay, then I will pay. This is the guarantee. You are giving guarantee as a director. If you are giving guarantee as a director, if the company cannot pay, I will pay. For what? लोन के लिए। अगर लोन के लिए गारंटी दे रहे हो तो भी एक सर्विस है। गारंटी दे रहे हो सर्विस की सर्विस है। गारंटी दे रहे हो सर्विस की सर्विस। इट इज आल्सो सर्विस। টাকা দিতে আমি গ্যারান্টি করি। So in these cases, who is providing service? Director is providing service. Who is receiving service? কোম্পানি। Company is receiving service. So company is required to pay GST because company is the recipient of service. Company is the recipient of service. रिवर्स चार्ज लगा कंपनी हो सकता है या फिर बॉडी ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। डिफरेंस क्या है? कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट। कंपनी मीन्स कंपनी। बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स एनी ऑर्गेनाइजेशन which has separate existence, means university is a body corporate. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका सेपरेट एग्जिस्टेंस है वो ही है बॉडी कॉर्पोरेट। LIC बॉडी कॉर्पोरेट, RBI बॉडी कॉर्पोरेट। कंपनी कौन है? जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड। RBI कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है क्या? नहीं। रिलायंस इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इज कंपनी, लेकिन RBI इज बॉडी कॉर्पोरेट। RBI is not company. RBI is not company. Reserve Bank of India is not company, but body corporate. Reliance Industries is company as well as body corporate. Company as well as body corporate. Company B plus body corporate B. Body corporate means which has separate existence. तो उसके बाद
service supplied by the person located in non-taxable territory by a transportation of goods. এটা কি দেখতে পাচ্ছ? जब गुड्स इंपोर्ट किया जाता है तो हाउ इट इज कैरिड, जब गुड्स इंपोर्ट किया जाता है हाउ इट इज कैरिड बाय ए वेसल, तो ये जो वेसल कंपनी है ये किसी कंपनी का होगा. दिस वेसल इज ऑफ एनी कंपनी, इट इज ऑफ एनी कंपनी. The company who is providing this service, the company who is providing this service means transportation of goods by vessel, transportation of goods by vessel. जो कंपनी वेसल बोलते भेसे तक भेजते वेसल बाय अ वेसल. तो जो यहाँ पे सर्विस कौन ले रहा है? इंपोर्टर सर्विस ले रहा है. मासूद खान आप भी तो सर्विस ले रहे हो, टैक्स देंगे। তোমরা কি জানো रिवर्स ऑर्डिनल शेड्यूल 3 में क्या लिखा है? If any service is provided by employee to employer is covered under schedule. Some activities is there, some activities are there which are not considered as supply of goods, supply of service. Supply of goods, supply of सर्विस नहीं माना जाता है जो कि कवर्ड है शेड्यूल 3. उसमें से एक है एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयर के सर्विस देता है, जो सर्विस एम्प्लॉयर. ठीक है. চলো ঠিক করে বলছো. মোবাইল হাতে গেল কি হলো? তো তুমি বাইরে যাও. Here importer is the recipient of service. Here importer is the recipient of service. What service he is taking? He is taking transportation of goods service by vessel. So importer is referred to basis. यहाँ पे एग्जांपल है देखो, क्योंकि वो जो वेसल है ना वो कौन सा कंपनी का है? ये जो वेसल है वो कौन सा कंपनी का है? बाहर से आ रहा है. तो जो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडिंग कंपनी रहती है वो बाहर का है. तो एग्जांपल में देखो एसटीसी ग्रुप इंपोर्टर का नाम क्या है? एसटीसी ग्रुप. मतलब ये बिजनेस एंटिटी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है. गुड्स इंपोर्ट किया है कितने लाख का? $1 lakh फ्रॉम जापान. फॉर विच ओरिएंट ओवरसीज कंटेनर लाइन ऑफ हांगकांग. जो कंपनी सर्विस दे रहा है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस वो कहाँ का है? हांगकांग. सर्विस चार्ज कितना है? $700. तो जीएसटी पे करना पड़ेगा किसको? एसटीसी ग्रुप को. किसके ऊपर? $700 के. यही है सर्विस वैल्यू. देखो दोनों ही अमाउंट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर होगा. ये जो 1 लाख है ये तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स में कवर होगा रिवर्स चार्ज में, और जो 700 है ये भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर होगा.
700 টাকা না কভার হবে 700 সার্ভিস কত টাকা নিয়েছো, সার্ভিস কত টাকা নিয়েছো, ট্রান্সপোর্টেশন সার্ভিস কত টাকা নিয়েছো, তো সার্ভিস নিয়েছো কি না, তো এটা কি বলে গেল, এই পয়েন্টটা তো পয়েন্ট নাম্বার 4 টা তো ওটাই বলে গেল। ইফ ইউ টেক সার্ভিস বাই ওয়ে অফ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वे ऑफ वेसल, वेसल के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो सर्विस वैल्यू है वो कितना $700 है, उसी के ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा, तो जीएसटी इंपोर्टर। और ये जो 1 लाख है ये कहाँ कवर होता है, ये कवर होता है ऊपर में, जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स है ना, इंपोर्ट ऑफ गुड्स वहाँ पे जो इंपोर्ट किया गया है गुड्स वो कितना है 1 लाख, तो गुड्स कवर हो जाएगा ऊपर के केस में, क्योंकि वहाँ पे क्या लिखा है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म गुड्स, यहाँ नीचे क्या लिखा है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सर्विस। সার্ভিস इसके बाद बोले সার্ভিস জল থেকে গাড়ি থেকে এটা দেখে বলো কত না সবটা সার্ভিস দিচ্ছে পড়ার দরকার নেই, বলো দেখি কি বলতে চাইছো, পড়ার দরকার স্যারটা বলে কি বলতে চাইছো, কমার্স মানে অর্থনীতি এটাই বোঝা देखो वेबसाइट, एक वेबसाइट बोलो जो कि फॉरेन कंपनी का है, फॉरेन कंपनी इस कंपनी का जो वेबसाइट है, इस कंपनी की जो वेबसाइट है इसमें तुम कुछ डाउनलोड कर रहे हो, इसमें कुछ डाउनलोड कर रहे हो, तो अगर तुम ये बिजनेस पर्पस के लिए डाउनलोड कर रहे हो, अगर ये बिजनेस पर्पस के लिए डाउनलोड कर रहे हो तो जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज तुमने सर्विस लिया है एप्पल कंपनी से, डाउनलोड सर्विस, कोई भी चीज हो सकता है, हो सकता है डेटा, हो सकता है कि लाइसेंस, कुछ भी डाउनलोड कर रहे हो या फिर अपलोड भी कर रहे हो, उसके लिए तुम्हें चार्ज भी देना पड़ रहा है, मतलब तुम कुछ भी सर्विस ले रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन सर्विस, तो उस केस में तुम जितना भी सर्विस ले रहे हो मतलब जो वैल्यू है, सपोज यू हैव टेकन सर्विस ऑफ ₹30,000, सर्विस ऑफ ₹30,000, सर्विस का जो वैल्यू है वो 30,000 है, तो इसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा, तुम्हें देना पड़ेगा। जो कंपनी है एप्पल कंपनी, the company will not collect because she is outside India, the company is outside India, company will not follow GST laws, company will not follow GST laws, company will not collect, you have to pay to the government under reverse charge mechanism। कोई लिखा है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विस, रिट्रीवल कर रहे हो, मतलब तुमने पहले अपलोड किए थे, बाद में जाकर देख रहे हैं, हो सकता है उसके लिए तुम्हें चार्ज भी देना पड़ रहा है, ऐसा। तो सर्विस कौन दे रहा है, पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, जो पर्सन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में मतलब आउटसाइड इंडिया है, इन आवर गिवन केस कौन है, इंडिया में है क्या, यूएस कंपनी, तो जीएसटी किसे पे करना पड़ेगा,
एनी पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब तुम डाउनलोड कर रहे हो जो इंडिया में, जो कंपनी डाउनलोड कर रही है, अदर देन किसे छोड़ के, गवर्नमेंट को छोड़ के, लोकल अथॉरिटी को छोड़ के, गवर्नमेंट अथॉरिटी को छोड़ के, एनी इंडिविजुअल को छोड़ के, और एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन में किसे एक्सक्लूड किया गया है, जो पर्सन कॉमर्स इंडस्ट्री नहीं कर रहा है। सपोज तुम पर्सनल पर्पस के लिए वो सर्विस अवेल कर रही, पर्सनल पर्पस के लिए क्या जीएसटी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को? नहीं। अगर तुम बिजनेस कर रहे हो, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस यू आर डाउनलोडिंग, अपलोडिंग एंड पेइंग फीस to the Apple, that means company outside India. In that case, you have to pay GST on the amount of service availed. जो तो टाका सर्विस नहीं है तो तार ऊपर GST। यहाँ पे देखो एग्जांपल है, सारेगामा इंडिया लिमिटेड डाउनलोडेड a song from Apple Store, पे किया कितने, तो GST देना पड़ेगा, GST पेबल बाय सारेगामा इंडिया लिमिटेड, क्योंकि रेसिडेंट ऑफ सर्विस है লিমিটেড। পাবলিক আরে বইতে রয়েছে, অ্যাকচুয়ালি তোমার আলাদা কোম্পানি হতে পারে, এখানে স্টুডেন্টকে শেখানোর জন্য যে কোনো দেওয়া হয়েছে, প্র্যাকটিক্যাল এর সাথে लास्ट क्या है, लास्ट की सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के केस में भी जो सर्विस ड्राइवर दे रहा है, ड्राइवर किसे दे रहा है, ट्रांसपोर्ट कंपनी को। तो आई विल टेक एन एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओला, ओला एक कंपनी है, ओला runs taxis, तो ये टैक्सी चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए कि नहीं चाहिए? Drivers are providing services to which company? Ola. Ola. Ola is taking service from drivers. Ola is taking service from drivers for running these taxis. तो ओला को जीएसटी पे करना पड़ेगा जो सर्विस की है, किससे? अंडरस्टूड? वही लिखो, ड्राइवर। सर्विस प्रोवाइडर कौन है? ड्राइवर। और कौन ले रहा है? एनी पर्सन, कंपनी हो सकता है, कोई बिजनेस एंटिटी हो सकता है, पार्टनरशिप কি বলছো? এখানে সার্ভিস, এখানে কোন সার্ভিসটা কভার রয়েছে? যে ড্রাইভার যে সার্ভিসটা দিচ্ছে, ড্রাইভিং করে, driver is providing service by driving car to which company? Ola. So Ola company is taking service from driver. What service? Driving service. So on this service, Ola is required to pay GST to GST department. This service is covered under reverse service. This service only. Driver is providing service to the company. Driver is providing by driving taxi motor. This service. Ola operates road taxi services in India. During the month of December, it collected 21 lakh from customer, paid 18 lakh to taxi driver.
तो टैक्सी ड्राइवर ने जो सर्विस प्रोवाइड की है उसका वैल्यू कितना है? 18 लाख है। मतलब ओला ने जो सर्विस ली है उसका वैल्यू कितना है? 21 नहीं, 18 लाख ही है। पे तो करना है 18 लाख। আরে এটা তো কাস্টমারের কাছ থেকে নিয়েছে, কালেক্ট করেছে, এটা পে করেছে। কাস্টমারের কাছ থেকে কতটা নিয়েছে দিস ইজ নট রেলিভেন্ট। কতটা তুমি ড্রাইভারকে পে করছো দিস ইজ দ্য রিলেভেন্ট। 18 lakh. So Ola has taken service of rupees 18 lakh from drivers. So GST is required to pay on 18 lakh under reverse charge mechanism. Understood? বুঝতে পারলে? 21 লাখ স্যার 21 লাখ তো কাস্টমারের কাছ থেকে নিয়েছে, কাস্টমারের কাছ থেকে তুমি জিএসটি কালেক্ট করেছো, হতে পারে তুমি কাস্টমারের কাছ থেকে জিএসটি কালেক্ট করেছো, সে তো ওলা কোম্পানি পে করবে। কিন্তু ড্রাইভারের কাছ থেকে যে সার্ভিস নিয়েছো ড্রাইভার তো আর জিএসটি পে করবে না, তোমাকেই দিতে হচ্ছে। মিন্স ওলা কোম্পানি ইজ রিকোয়ার্ড টু পে জিএসটি। कंप्लीट। अच्छा यहाँ पे देखो वो तो कुछ स्पेसिफिक गुड्स था, स्पेसिफिक सर्विस था, वो अगर वो गुड्स सर्विस प्रोवाइड करते हो तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आता है। उसे छोड़ के अगर तुम अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स खरीदते हो, अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स खरीदते हो तो तुम्हें जीएसटी पे करना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, क्योंकि जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है क्या वो जीएसटी पे करेगा? इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन यू टू पे जीएसटी। वो तो स्पेसिफिक गुड्स था, स्पेसिफिक सर्विसेज था, उस केस में तो हर हाल में किसे देना पड़ेगा? रेसिपेंट को, रेसिपेंट को। वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक गुड्स था, स्पेसिफिक सर्विसेज था, वहाँ पे हर हाल में किसे देना पड़ेगा? हर कंडीशन में रेसिपेंट को। लेकिन वो गुड्स छोड़ के किसी भी गुड्स या फिर सर्विस तुम ले रहे हो किससे? अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में तुम्हें जीएसटी पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो अनरजिस्टर्ड है, तो जीएसटी नहीं पे करेगा ना गवर्नमेंट को। वो पॉइंट लिखा है कौन सा सेक्शन में? सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 विद इन ब्रैकेट जो है वो सबसेक्शन। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है देखो, आरसीएम इज नॉट एप्लीकेबल इफ द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सप्लाई डज नॉट एक्सीड 5000। यहाँ पे लिखा है कि अगर तुम ऐसा सर्विस ले रहे हो, मतलब जो ऊपर में जो सर्विस लिखा है या फिर गुड्स लिखा है वो सर्विस, और अनरजिस्टर्ड पर्सन से जो सर्विस ले रहे हो, ऊपर में जो गुड्स या फिर सर्विस कवर है वो गुड्स या फिर सर्विस ले रहे हो या फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन से ले रहे हो, उसमें भी तो रिवर्स चार्ज लगता है ना। दोनों में भी अगर वो सर्विस का वैल्यू या फिर गुड्स का वैल्यू 5000 एक्सीड नहीं कर रहा है, मतलब विद इन 5000 ही, तो आरसीएम एप्लीकेबल ही नहीं है। सपोज तुम अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज कर रहे हो लेकिन वो जो वैल्यू है वो 5000 तक ही, तो तुम्हें अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रेजिस्टर्ड पर्सन থেকে নিলে তো সেই পে করবে, কালেক্ট করবে তোমার 5000 যদি রেজিস্টার্ড পারসন তোমাকে সেল করছে তাই তো, তো সেই ক্ষেত্রে কি আছে রিভার্স চার্জ না ফরওয়ার্ড? ফরওয়ার্ড চার্জে তো তাহলে দেখেন কত আসছে, ফরওয়ার্ড চার্জে তো কালেকশন করনাই হবে। In forward charge, you will not see the amount of service. You have to collect GST even if it is 10 rupees, even if it is 15 rupees, even if it is 1 rupee. Okay. ये कुछ जर्नल एंट्रीज है, देख लो ये एंट्रीज
रिलीवेंट नहीं है। अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जर्नल एंट्री कैसे करोगे? परचेज ऑफ गुड्स, परचेज कितना किया, एक्चुअल वैल्यू कितना है 10,000, जीएसटी पे कितना करना पड़ेगा 18%। खरीद रहे हो तुम्हें ही देना है, खरीद रहे हो तुम्हें ही देना है। परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट, तो जीएसटी कितना देना है? अच्छा जीएसटी तुम जो दोगे वो तो फिर भी उसका तो आईटीसी भी ले सकते हो ना, जो जीएसटी तुम पे करते हो उसका आईटीसी ले सकते हो। तो इसीलिए सीजीएसटी क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, एसजीएसटी डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एसेट है, एसेट। और कस्टमर को कितना, कस्टमर नहीं है, सप्लायर, सप्लायर को कितना देना पड़ेगा 10,000। सप्लायर मीन्स क्रेडिट है। अगर तुम पे कर, सपोज यू हैव परचेज गुड्स ऑन कैश, इन कैश, इन दैट केस बैंक, in that case bank. If you purchase on credit then creditors, और ये पे करना है, ওটা আলাদাই তো Liability. সেলারকে দিব না पहले तो पे Reverse करो, charge पहले तो पे करो उसके बाद ही तो एसेट बनेगा। ठीक है, ওটা বুঝুন এটা তো আমি direct जो করতে तुम পারছি। जीएसटी पे करोगे वो एक एसेट है, ये लायबिलिटी भी है, क्योंकि तुम्हें ही देना है, तुम्हें आईटीसी मिलेगा। पहले तो पे करो उसके बाद ही ITC। তোমাদের 10,000 দিব বেশিরভাগ কি করা হয় স্যার, এটা একসঙ্গে বসিয়ে দেওয়া হয়। ওটা তোমার সে ফরওয়ার্ড চার্জ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, এটা তো আমি ये जर्नल एंट्री अंडर व्हिच मैकेनिज्म, एंट्रीज अंडर रिवर्स, एंट्रीज अंडर रिवर्स। इसीलिए एक बार तो लायबिलिटी बन रहा है, फिर एसेट भी बन रहा है। আমার কাছে থাকবে বলে আমি রেখে দিচ্ছি ये कौन सा केस है, इंट्रास्टेट केस है। तो इसके बाद इंटर में आईजीएसटी, आईजीएसटी सेम। उसके बाद कंट्रीज, इंपोर्ट है, इंपोर्ट में आईजीएसटी, आईजीएसटी ऐसे ऐसे। ये एंट्री रेलिवेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो काम तुम करोगे वो तो टैली में ही करोगे, रेलिवेंट। তো নিজেই করে দিতে ठीक है, आज के लिए इतना ही। থ্যাংক ইউ রিভার্স তাহলে এন্ট্রি তাহলে ট্যালিতে করলে ওই যে সেম প্রসেসটাই করবে।